Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about paragraph writing. How we have to write paragraphs. The story of language starts from sounds and words, and it further proceeds towards sentences. Means first, when we start talking about any language, whether it is our mother tongue or we are learning English language, in both cases it starts from sounds and words. Words combine and they make phrases, and then phrases or words combine to make a sentence, make a clause, and one clause or more than one clause make a sentence, and then two or three or more than three sentences make a paragraph. So when we are talking about a sentence, we mean to say that one sentence talks about one idea, one clause talks about one idea. So one sentence also talks about one idea. So you have to remember that one paragraph talks about one idea. So you have to remember this thing, that you are not going to deal with more than one idea in one paragraph. When you're going to write a paragraph, so you have to note that you have to write one, and you have to talk about one idea. So let's see what happens when we are writing a paragraph. So this is a story of writing a paragraph. What is a paragraph? So let's talk about that. A paragraph is a group of sentences that develops one central point. You have got one point to discuss. In one paragraph, you have got one point to discuss. You need not to discuss more than one idea in it. So, being a group of related sentences, it usually has one main idea, and how it is developed, how we make a paragraph is that we have to write a topic sentence that presents the controlling idea, topic and controlling idea, then some supporting sentences, and then we have to conclude. If I say that you have to talk about causes of corruption, so you have to write that dishonesty is one of the major causes of corruption. Then basically we are talking about cause of corruption, that is the topic, and dishonesty is the controlling idea. And then you have to provide supporting sentences where there is a dishonesty. You have to provide evidences. When you are going to write about it, you have to provide evidences. सबूत देने आपने, जब आपने कहा कि बेईमानी जो है वो हमारे माशरे में सरायत कर चुकी है, फिर आप सबूत लाएंगे, whether that is based on your practical experience or that is based on any written experience. अखबारात की बातें नहीं, ठीक है. रिटन एक्सपीरियंस मीन्स किसी किताब से आपने पढ़ा या आपने फिजिकल एक्सपीरियंस किया, सो यू कम टू नो अबाउट दैट, ठीक है. Okay, so what is a paragraph? As I told you, that is a collection of sentences that are related to a common theme. We'll be talking about one common theme in a paragraph, in a sense that each paragraph is a small essay. You know that when we talk about causes of corruption, so causes of corruption is one essay, and when we talk about one cause, it means we are talking about once again we are talking an essay at small scale, ठीक है. essay की आप essay को कंडेंस फॉर्म में ले आते हैं. स्मॉल स्केल पे एक essay के कुछ हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ. Whereas एक पैराग्राफ जो बॉडी पैराग्राफ होता है, बेसिकली एज वी आर राइट नाउ वी आर लर्निंग द सेम थिंग वेदर इट इज़ अ पैराग्राफ और अ बॉडी पैराग्राफ, ठीक है. इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ आगे जाके आप सीखेंगे. सो हर पैराग्राफ जो एक स्मॉल ऐसे होते हैं, मीन्स कि अगर कॉज ऑफ करप्शन है बहुत से हैं तो आप एक पे बात करेंगे. इट मीन्स ये स्मॉल ऐसे एक कॉज पे आपने डिस्कस किया. So you have to consider your reader when you are writing your paragraph that it should not be too long, not too short, not too dense. ना उसके अंदर गहराई हो. गहराई मीन्स कि आप ऐसी बातें ना करें जो बंदे को समझ ही ना आए, और ना इतना लेंथी लिखा हो कि कुछ पता ना चले, यानी कहाँ सर है कहाँ पाऊँ, और ना इतना शॉर्ट हो कि 2 sentences आपने लिख दिए, 3 sentences, मोर देन 3 कम अज़ कम, ठीक है. 5 to 7 sentences में एक अच्छा पैराग्राफ
मिनिमम 5 सेंटेंसेस और 5 से 9 तक आप लेके जा सकते हैं। 5 to 9 सेंटेंसेस के अंदर आप पैराग्राफ लिखें, ठीक है। इट शुड नॉट बी मोर देन 9, दैट इज़ इनफ, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग में चला जाएगा, फिर ज़रूरत के मुताबिक आप लेंथ बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है। बिकॉज when you are going to talk on one idea related to essay, causes of corruption पे बात की, so when you're talking about one idea, so definitely it means that you need to discuss just one idea. So one idea में एक पॉइंट आपने दिया और आपने उस पॉइंट को डिस्कस कर दिया, आपने उस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया कि ये इस पॉइंट के अंदर क्या है, आपने उसके कॉजेज़ की बात की, आपने एविडेंसेस की बात कर दी, बस बात ख़त्म होगी, ठीक है। तो ये 7 से 9 सेंटेंसेस के अंदर पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यही तरीक़ेकार था जो मैंने बेसिकली वहाँ पे अडॉप्ट करना था, जो मैं मल्टीमीडिया के लिए पीटता रहा। एट द बिगनिंग आई कुडंट गेट द मल्टीमीडिया, सो एट लेटर स्टेजेस व्हेन आई गॉट, उस वक्त फिर मैंने कहा अब ज़रूरत नहीं, अब हम वैसे ही प्रिंटिंग पे काम करें, ठीक है। यही काम हमने करना था। अच्छा, उसके फॉर्मेट एक होता है पैराग्राफ का, 5 to 10 सेंटेंसेस में होगा। फर्स्ट लाइन यूजुअली इंडेंटेड दैट इट शुड बिगिन फ्यू स्पेसेस टू द राइट ऑफ द मार्जिन टू शो दैट देयर इज अ न्यू पैराग्राफ। यू कैन लुक एट द स्क्रीन। ये है इंडेंटेड फॉर्म, ये एरो लगा हुआ है, यहाँ से स्पेस पे आप चलेंगे, यानी कि आप ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के आपने शुरू कर दिया, बस आया जिधर आया उधर आपने उसको लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा आपने स्पेस देनी है, थोड़ा सा स्पेस देनी, ये लाइनें लिखी हुई हैं, तो इस तरह इंडेंटेड फॉर्म में आप पैराग्राफ लिखेंगे। So when you're going to write a paragraph, remember that it is a skill that comes with practice, just like almost everything else in life, ठीक है। रोटी बनानी है ना घर में, तो वो भी एक स्किल है। जब सबसे पहले जो बनती है तो बांग्लादेश का नक्शा बनता है, फिर पाकिस्तान का नक्शा बनता है, फिर अफगानिस्तान का नक्शा बनता है, नक्शे बनते रहते करते करते वो गोल रोटी बनना शुरू हो जाती है। सो इट इज़ प्रैक्टिस दैट यू नीड, ठीक है। सेम इज़ द केस इन एवरीथिंग, एज आई टोल्ड यू दैट दिस इट इज़ अ स्किल एंड स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। सो टाइप ऑफ सेंटेंसेस टू मास्टर, you have to know कि आप you have to learn, you have to pass through writing process, ठीक है। एक राइटिंग प्रोसेस है, उस पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा। स्किल ये है कि आपने आइडियाज़ इकट्ठे करने हैं कि आप क्या लिखेंगे, किस चीज़ पे बात करेंगे और किस तरह करेंगे। सो अ गुड पैराग्राफ हैज़ अ बिगनिंग, मिडल एंड एन एंड। बिगनिंग भी होती है यानी कि टॉपिक सेंटेंस, मिडल भी होता है यानी कि बॉडी, or end means concluding paragraph. So it is well developed and organized. The main idea or topic sentence must have supporting sentences to add the clarification to the details, and finally it must have a concluding sentence, a transitional sentence that ends the paragraph's idea completely or moves the reader smoothly to the next paragraph. यहाँ ये बात मैं बता रहा हूँ कि जब आप एक ही पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं, वरना आप ट्रांजिशनल सेंटेंस लेके जाते हैं कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप एक के बाद अगली बात के, एक कॉज आपने बताया, आप अगले पे जा रहे हैं, फिर अगले पे जा रहे हैं, इस तरह फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर आप ट्रांजिशनल सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सिंगल पैराग्राफ लिखेंगे। सो यू हैव टू राइट कंक्लूडिंग सेंटेंस, यू हैव टू कंक्लूड योर पैराग्राफ विद अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता आपने किया हुआ नहीं है, जिन्होंने किया है उनको भी हम इशारा दे देते हैं, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी हमने ऑफ़र रख दिया है हैम बर्गर की, ठीक है। इट इज़ बेसिकली फॉर यू टू ईट एंड फॉर यू टू यू कैन च्यू एंड डाइजेस्ट। इस हैम बर्गर को आपने खा जाना है। अब खाना किस तरह है, दैट इट इज़ हैम बर्गर फॉर्मेट दैट प्रोवाइड्स यू अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग एन ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ, ठीक है। हैम बर्गर के जो टॉप बन है दैट इज़ योर टॉपिक सेंटेंस, देन कम्स the other one, that the body that is देखिए टॉप बन और एंड द लोएस्ट बन, ठीक है। ये दोनों होल्ड करते हैं, टॉप बन एंड होल्ड बन। दरमियान में आपके माल सारा पड़ा हुआ है, टोमेटो, हैमबर्गर, पैटी। अब किसी के अगर मुंह में पानी आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा होल्ड कीजिए, ठीक है, नाश्ता कर लीजिए। यार अपने पानी का खुद बंदोबस्त करना है, थोड़ा सा और पानी पी लो। मुझे आई फील कि किसी ना किसी के मुंह में पानी आ रहा है या बहुत सौ के मुंह में आ रहा है। सो लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस की हम बात करेंगे, ठीक है, कि इसको बोला जाता है लेटस, ये सारे का सारा है। उसके बाद ये चीज़ें यानी कि दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू इन राइटिंग अ पैराग्राफ।
ये टेक्निक आपने अडॉप्ट करनी है, दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक with a sentence, with a topic sentence. Then you have to give details about your topic. Make sure that it must have at least 3. ठीक है, you must have at least 3. 3 sentences आप जरूर लिखेंगे. Close at your writing with a finishing sentence about your topic. This is closing sentence. ठीक है. अच्छा, मुझे I have one question from you कि आपने पहले पैराग्राफ राइटिंग इस तरीके से कहीं पढ़ी थी, सुनी थी? प्लीज़ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आगे फिर बढ़ूँ उसके बाद. कोई बता सकता है? हाउ वाज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस? आई एम श्योर दैट यू हैव लर्नड इट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट. हाँ जी, कोई बताएगा, जहमत करेगा कोई? कितने आराम से खामोश हो गए, कितने शरीफ बच्चे हैं ना. अनीस, आप बताएं. इसको अनम्यूट करें पहले. आप अपने माइक को जब आप बोलते हैं अनम्यूट करें. हाँ जी सीआर, आप बता दें जी. हैव यू एवर एक्सपीरियंस राइटिंग पैराग्राफ? इफ चलें आज तजर्बा कर लेते हैं जी. ठीक है, आज तजर्बा करें, सीखें. अच्छा, इस तरह ना बर्गर वाला, ये लगता है मैंने बर्गर की तस्वीर दिखाई तो लोग बर्गर खाने निकल गए ना, गायब हो गए सारे. सो बर्गर खाने अगर निकल गया तो वापस आ जाए. अच्छा, सो यू हैव टू क्लोज योर. क्या हुआ है? अच्छा, ये यानी बर्गर भी तो लोग खाते हैं सुबह नाश्ते में. चलें, वैसे अगली क्लास में बर्गर ये वैसे दिल में रख लीजिएगा, बाद में खा लीजिएगा. सो यू हैव टू क्लोज आउट योर राइटिंग विद अ फिनिशिंग सेंटेंस अबाउट योर टॉपिक. ठीक है, सो दिस विल बी द वे. सो अब ये टॉपिक सेंटेंस किस बला का नाम है, ये क्या लिखना है इसके अंदर? सो लेट्स सी कि हम क्या लिखेंगे इसके अंदर ना. टॉपिक सेंटेंस स्टेट्स व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट एंड इट इज गोइंग टू टेल, you can say tell the reader that what you are going to write. So it must be somewhat general in nature, as we say that there are many causes of corruption and one of them is this. So ये general statements ही होती है. So it reveals the writer's direction. It will tell the reader that on which cause of corruption you are going to talk in this sentence. As I told you, that dishonesty is one of the major causes of corruption. Nepotism is one of the major causes of corruption. So that is the topic sentence, that you are going to talk about nepotism in this paragraph. So you are going to tell that where your idea is going. So it is the beginning and the jumping off point of the paragraph. So think of each paragraph as a separate entity. If you are writing an essay, so you have to think that ये हर paragraph एक separate entity है. As we say that if we are writing on if you are writing on causes of corruption, so we have to take every paragraph as a separate entity. If we are writing on three major causes in 3 body paragraphs, so every body paragraph should have nepotism, then dishonesty, then you can say anything else. ठीक है. So that is what, these are the causes and one cause in one paragraph. ठीक है, एक ही cause जब आप लिखते हैं, so you have to remember that someone is going to read it. Reader is very important for you when you are writing. When you are speaking, then listener is very important. If I am speaking and you are unable to understand me, then my purpose of speaking is a failure. Then it is a useless activity. So what you have to do when you're writing, you have to look for the reader. So topic sentence is the first sentence of the paragraph. Usually ये पहला पैराग्राफ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. ठीक है, लेकिन हम पहला पैराग्राफ ही लिखेंगे, ये याद रखिएगा. We shall write first paragraph, a topic sentence. So let's see किस तरह लिखते हैं. For topic sentence you have to follow some rules. One topic equals one main idea per paragraph. So we are talking about causes of corruption.
So there are 3 more, 4, 5, 6, 7, 8 causes. So these all are the topics. So one topic mean one idea. So you have to discuss only one cause of corruption in one paragraph. Do not discuss more than one cause. And then you have to write supporting sentences that follow the topic sentence and must be closely related to the topic or main idea. ठीक है, must be closely related. Topic sentence forces the reader to control the writing of the paragraph by keeping it within the boundaries of the main idea or topic. जब आपने टॉपिक बोला कि डिसऑनेस्टी एक कॉज है तो फिर उसने आपको रोक दिया, अब आप डिसऑनेस्टी पे ही लिखेंगे, वहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं लिखेंगे, वहाँ पे आप नेपोटिज्म पे नहीं लिखेंगे. जो आपने टॉपिक लिखा उसी की बेस पे आप आगे सपोर्टिंग सेंटेंस, बिकॉज यू आर गोइंग टू सपोर्ट योर आर्गूमेंट दैट यू हैव डेवलप्ड इन योर फर्स्ट सेंटेंस. सो इट शुड नॉट बी नीदर टू ब्रॉड नॉट टू नैरो इन स्कोप. ना तो इतना ब्रॉड हो मीन्स कि उसमें आप लिखते हैं जी कि करप्शन इज कॉज्ड ड्यू टू डिसऑनेस्टी एंड नेपोटिज्म. आपने दो लिख दी तो आइडियाज़ दो हो जाएंगे. सो ये ज़्यादा ब्रॉड ना हो. और नैरो इन स्कोप ये भी ना हो कि देर आर मैनी काजेज ऑफ करप्शन, बस इतना आपने लिख दिया तो ये भी ना हो ना, बल्कि इट मस्ट गिव द टॉपिक सेंटेंस एंड कंट्रोलिंग आइडिया. दीज आर द टू थिंग्स that the topic sentence must have. Topic and controlling idea. Beginning का जो पैराग्राफ सेंटेंस है, सबसे पहला जो सेंटेंस है, that must contain the topic and controlling idea, these two things. So we'll be looking at it. If I say that the parts of a sentence, then the most important sentence is the topic sentence, because it will be expressing the main idea of the paragraph. So it contains the topic and controlling idea. Topic deals with the main idea and controlling idea limits the topic to something very specific. As I told you, causes of corruption. So causes of corruption is the topic and controlling idea is what? Nepotism. Nepotism is one of the major causes. That is controlling idea, that we have limited it as we have got a lot of causes of corruption to write. But here in this particular paragraph we are talking about nepotism only. So उसने उसको कंट्रोल कर दिया, वहीं उस चीज़ तक लेके आ गया. ठीक है. सो मेरी बातें समझ आ रही हैं, ये बस हम इधर उधर हवा में तीर चलाए जा रहे हैं. थोड़ा सा बता दें. अच्छा, ये आप रज़ाई में से बोल रहे हैं, मुझे पता चल रहा है आपकी आवाज़ से ना, रज़ाई के अंदर से. वाक एंड में ठंड है ना ज़्यादा, इसलिए कह रहा हूँ. नहीं, कैमरा नहीं ऑन करवाना, फिर हमें वैसे ही खौफ आना शुरू हो जाएगा ठंड की वजह से. अच्छा, सो as we say, parts of topic sentence, topic deals with the main idea and controlling idea limits the topic to something very specific. अब किस तरह करता है, मैंने एक इधर यहाँ पे रखा है सेंटेंस. लुक हियर. An important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation. बेसिकली ये पैराग्राफ है एक एसे का, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि फैक्टर्स इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. ठीक है, ये एक एसे था, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. उसमें से हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं. तो एक फैक्टर है मोटिवेशन का. मोटिवेशन को उसने थोड़ा सा मज़ीद नैरो डाउन करके यहाँ पे लिख दिया कि an important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation. Directly उसने मोटिवेशन के दोनों हिस्से यहाँ पे बयान कर दिए. सो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस कि अगर फॉर एग्जांपल वी से क्योंकि जब आप मोटिवेशन की बात करेंगे आगे जो आपने उस चीज़ पे बात करनी है, सो डेफिनेटली यू हैव टू से लाइक दैट. इफ़ आई से नेपोटिज्म या मिसाल के तौर पर डिसऑनेस्टी, तो वो एक होती है पब्लिक डिसऑनेस्टी, एक होती है प्राइवेट डिसऑनेस्टी, कि आप दोनों पे बात करना चाहिए. अगर जनरल मोटिवेशन पे बात करनी होती तो मैं यहाँ पे लिखता है एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज हैज टू डू विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन. कि मोटिवेशन, फिर मोटिवेशन पे बात करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, सो यू कैन राइट इन दिस वे. अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे वो एक आसान सा हलवा से नहीं बनाया, क्योंकि फिर आपने वही छापा मारना है और मुझे भेज देना है, क्योंकि मैंने दैट्स व्हाई आई सेड कि आप खुद बनाएंगे ना,
मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए रखा ताकि आप अपनी खोपड़ी को बाद में एग्ज़ाम के दौरान इस्तेमाल करें। याद रखिएगा कि when your paragraph writing will be graded, we shall check your topic sentence, we shall check your supporting sentences, supporting details, evidences, we shall check your concluding paragraph sentence कि क्या ये उसके मुताबिक है। हमें पता है that you have got an you will get a plenty of material on every topic, इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा है, बट आपने इस तरह लिखना जैसे मैंने बोला है ना कि आपने ये पैटर्न फॉलो करना है। If you're writing, you have to write the topic sentence. Topic sentence, you must know that your topic sentence must have a topic and a controlling idea. Then your supporting sentences, these are supporting details. बाद दफ़ा आपको evidences देने पड़ते हैं, बाद दफ़ा supporting details देनी पड़ती है, whatever is that. So आपने उसी तरह उसको लेके चलना है, यानी उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी. So look at the sentences here. An important factor, अगर एक सेंटेंस ये देयर इज अ बैड एग्जाम्पल, बैड टॉपिक्स एंड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज. सो इसके अंदर दिस अ बैड एग्जाम्पल. वाई? बिकॉज इट लैक्स कंट्रोलिंग आइडिया. इट डज नॉट लिमिट अ टॉपिक टू मेक इट मोर स्पेसिफिक. Whereas there is a bad topic sentence, there's a bad topic sentence, so we have got another one that is a good topic sentence that names the main idea and it provides you the controlling idea both. So you can look at the main idea, factor in learning a foreign language. ठीक है, this is a topic, and then this is a controlling idea, intrinsic versus extrinsic motivation. One or the other way, this is what the concept of motivation, that is the controlling idea that we are going to talk about intrinsic versus extrinsic motivation in this particular paragraph. कि यहाँ से रीडर को पता चलता है कि आपने फैक्टर्स के अंदर कौन सी डायरेक्शन सेट की, आप किधर जा रहे हैं, आप क्या लिखने के लिए आप जा रहे हैं. So topic names the main idea, general subject of the paragraph. An important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation. So ये important factor है topic, और this is what specific. It is making it more specific. Comment about the subject, tells the reader what the paragraph will say about the main topic. ठीक है, कंट्रोलिंग आइडिया आपको बता रहा है कि आप किधर जाएंगे, किस रुख में जाएंगे. ठीक है. सो जब आप भी लिखेंगे तो प्लीज़ इस तरह लिखेंगे. जब आप एग्जाम के अंदर लिखते हैं, बाकी पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं, जहाँ पे आपको नज़र आता है कि ये चीज़ अप्लाई की जा सकती है, प्लीज़ डू अप्लाई दैट. शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो आंसर्स होते हैं, आप उनको इसी तरह लिखा करें. So when you're done with your topic sentence, then you have to provide supporting details. Means these this is basically going to be the middle of your sentence, the middle of your paragraph. You have to provide examples, you have to provide supporting details, you have to provide facts or statistics. So you can also note down cause and effects. Means these sentences provide the reader with more specific or concrete details about your topic sentence or the main idea of the paragraph. हमने बात की, करप्शन की बात की, आपने लिख दिया, अब आप डिटेल्स देंगे. अब ये डिटेल्स इस तरह हो सकती हैं by giving examples, by supporting details, by facts or statistics. किसी भी तरीके से आप बताएंगे. Let me tell you one topic related to as we time and again we discuss women rights in Islam. If we say that there are many rights that women have been blessed blessed by our religion. So if we talk about one right, just एक right के बारे में बात करते हैं कि औरतों को जो है ना वो तालीम का हक दिया गया. So the right for education, for example, this is one right, the right for education. If I say that women are blessed with the right for education by Islam, और इस्लाम has blessed women with the right of education. So इससे पता चलता है women right की बात और your education के right पे बात करें. Now you have to provide evidence. इस्लाम ने कहाँ पे कहा, कुरान में कहा, हदीस में कहा, वहाँ पे आपको क्या बताना है, facts बताने हैं. You have to talk about facts, statistics. फिर supporting details आप देंगे. अच्छा, तालीम इस्लाम ने यहाँ पे कहा और सपोर्टिंग डिटेल्स ये उस तालीम की वजह से औरत कहाँ पे पहुँच चुकी, औरत का क्या मुकाम हुआ, फिर आप उसको क्लोज कर देंगे. ठीक है. या सिंपल आप फैक्ट्स बताएंगे, इस्लाम ने ये कहा हुआ है, अब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी का, हमारे सिस्टम का हक बनता है कि उनको हक मिले. दैट इज़ व्हाट अ कंक्लूडिंग सेंटेंस. स्पेशली आप सिंध में या बलूचिस्तान में चले जाएं, या आप
साउथ में पंजाब के चले जाएं, सो यू कैन फाइंड पीपल स्पेशली in case of women that they are not treating them well, and especially the women are not provided with education. में इन्होंने क्या करना है पढ़ के. सो ऐसी सिचुएशन में women rights की जब बात कीजिए तो आप कहते हैं कि ये अब हमारे ऊपर एक एज अ मुस्लिम ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस्लाम ने जो हक दिया वो उसको उसका हक उसे दिलाया जाए. ठीक है, इस्लाम ने जो हकूक़ उसको दिए हैं वो उसको मुहैया किए जाएं. दैट विल बी द कंक्लूडिंग सेंटेंस. ठीक है, आपने बात की, एक राइट की बात की, राइट फॉर एजुकेशन की, फिर उस पर आपने कुरान और हदीस का हवाला दिया. उसके बाद आपने ये लिखा कि हमारे मुल्क में ये कहीं दिए जाते हैं, कहीं नहीं दिए जाते. जहाँ दिए जाते हैं अच्छी बात है, जहाँ नहीं दिए जाते वहाँ के लिए ये है कि उनको चाहिए कि कुरान के अहकामात पे अमल करें. सो दैट्स व्हाट द कंक्लूडिंग सेंटेंस. ठीक है, सो लुक हियर about that important factor in learning a foreign language. उसके अंदर हमने क्या लिखे? There are 3 supporting sentences. The first is related to intrinsic motivation, the second one is related to extrinsic motivation, and the third one is related to major topic learning. ठीक है, CR आपसे मेरी गुजारिश होगी ज़रा इस स्लाइड को पढ़िए ज़रा. सीआर माइक अपना ऊंचा करें, आवाज़ आपकी स्लो है, इसको बल्कि हाँ ठीक है, इधर इधर स्लो है. हाँ चलें पढ़ें जी, इसको इस स्लाइड को पढ़िए. सीआर पढ़ें स्लाइड को. असरार. यस सर. हाँ पढ़ें ना, स्लाइड को पढ़ें. सर कौन सा पेज था? 16 है, स्लाइड नंबर 16. An important factor in learning a foreign language, ये वाली है. ये ओके अब पढ़ो. सर. किधर गायब हो गए थे? पकड़े गए हो? नहीं सर, मैं यही था. स्पोर्टिंग सेंटेंस एन इम्पोर्टेंट An important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation. When we do something for the fun of it. सर रूममेट डिस्टर्ब कर रहे हैं. अच्छा अंकल लगा के क्लास करने का, क्लास ले रहे, कॉल करते हैं. अच्छा हाँ पढ़े. We enjoy it. That is called intrinsic motivation. Extrinsic motivation, on the other hand, is when we do something for the purpose of receiving some kind of external reward, such as money, time off from work, etc. Many education experts believe that intrinsic motivation is more powerful than when it comes to helping students retain what they have learned. Okay. So this is live भाई, इसरार एंजॉय करें इसको. ठीक है, सो यू Yes sir. अभी आप इसको माइक को ऑफ कर दें. अच्छा, an important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation. ठीक है, अब यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपके सामने स्लाइड्स पे मौजूद हैं. there are more 3 sentences and these are the basically evidences or supporting details that we have provided. So you have to follow the same pattern when you are going to write. ठीक है, so then you have to take supporting sentences in a paragraph as logical rather than random units. ठीक है, logically आपने लिखने हैं. Supporting sentences also function as a transitory device. It will help the reader to see the connections between ideas. Ideas के दरमियान यहाँ पे आप देखिए that these sentences are providing you the connection between the ideas. These are not disconnected thoughts. These are connected thoughts. So anything that has no direct bearing on the topic sentence must be excluded. So apply cohesion and coherence. Means कि जिसका ताल्लुक टॉपिक के साथ नहीं है आप उसको ना ऐड करें. देखिए हर एक का ताल्लुक है. आप देखें इनके साथ कोई रिलेशनशिप है टॉपिक के साथ, टॉपिक सेंटेंस के साथ. टॉपिक सेंटेंस में टॉपिक और सपोर्टिंग कंट्रोलिंग आइडिया है. सो हर एक के साथ ताल्लुक मौजूद है. दिस इज व्हाट द रिलेशन. ठीक है, और ये होना चाहिए. अगर नहीं है तो इट मीन्स दैट योर सपोर्टिंग सेंटेंसेज वर नॉट प्रॉपर. सो योर सेंटेंस इज लैकिंग यूनिटी.
यही चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर टेस्ट की जाएंगी, देखी जाएंगी। आप लिख लेंगे सारा पैराग्राफ, लेकिन यहाँ पे जाके सारी गेम होगी, ठीक है। दैट विल बी द मेजर थिंग। So then there is a concluding sentence, the end of your paragraph, the last sentence in a paragraph, bold-faced sentences that are added onto the support sentence, the concluding sentences. These paragraphs are finished or not leading to another paragraph. अगर finished है तो ठीक है, नहीं finished तो आगे अगले पैराग्राफ की जानब जा रहे हैं। बेसिकली दे रिमाइंड द रीडर of the main points of the paragraph and leave the reader with something to think about. रिमाइंड करवाएंगे आपको कि आपने क्या करना है। रीडर के लिए, रीडर सोचेगा कि यार इस पे इसने जो बात की अब आगे ये किधर लेके जाए। इफ आई से डिसऑनेस्टी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ करप्शन, तो हम कहते हैं अच्छा इसको किस तरह हल किया जाए, तो आप कहते हैं गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट इस डिसऑनेस्टी को किस तरह ख़त्म करती है, सोसाइटी पे है वो इसको किस तरह ख़त्म करता है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू लीव द रीडर टू थिंक अबाउट योर टॉपिक। सो हम अगली एग्जाम्पल में देख भी रहे हैं ना। This is a concluding sentence. So the challenge for the reader teachers today is how can we help our students become intrinsically motivated in what we are teaching. Basically, intrinsic motivation is very important ना। तो an important factor in learning a foreign language, उसके अंदर हमने बात की कि उस्ताद के लिए चैलेंज ये है कि intrinsically किस तरह बच्चे को मोटिवेट किया जाए। So the concluding sentence leaves the reader for the final thought by asking a question. उसको सवाल उसने कर दिया, उसे कहा जी आप खुद सोचें, अब आप करें। जैसे मैंने अपने विमेन राइट्स से बात की तो हम भी कहेंगे कि द चैलेंज फॉर पाकिस्तानी सोसाइटी फॉर एन इस्लामिक स्टेट इज़ हाउ इट कैन हेल्प वुमेन टू गेन दिस राइट। वुमेन राइट्स की आपने बात की तो आप कहते हैं ना कि वुमेन के लिए वो एक चैलेंज है। सो द चैलेंज फॉर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ how to help women to get this right. तो उस right की बात आप कर देंगे, right for education, how to offer them, how to give them, ठीक है। तो then we have to look at other things, इस तरह जुड़े हुए हैं। your good paragraphs must have a unity, जुड़े हुए हैं आपस में। Each sentence in the paragraph is related to a topic sentence. So unified paragraph also discuss only one main idea. At the beginning I told you कि एक आइडिया को आप लेके चलेंगे और वही हम इधर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। So there is one slide. Look at slide number 21 and please इसमें से ढूंढें कोई ऐसा सेंटेंस जिसका इस पैराग्राफ के साथ ताल्लुक नहीं है। इस पैराग्राफ में जो मसले हैं वो आपने बताने हैं, यूनिटी के अलावा भी मसला बताना है। ढूंढें जी, पैराग्राफ आपके सामने, दिस इज़ वन एक्सरसाइज फॉर यू, और इसको यू हैव गॉट वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। थोड़ी सी देर में आपने इसको देखना और मुझे बताना। ये SF जो है ना, SF आपसे हमारी गुजारिश है कि आप प्लीज़ अपनी ID जो है ना उसको अपने यहाँ पे जो आपका नाम है, ओरिजिनल नाम, उसको ज़रूर इंडिकेट करें, शो करें, ठीक है। अपना नाम, अपना SF प्लीज़ उसको शो कीजिए। हाँ जी, इसको पढ़ें और मुझे फिर वजीहा सिकंदर आपने मुझे बतानी है गलती इसके अंदर, ठीक है। और ये उसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाम ले लिया तो उसने ही बतानी है, वो कोई और भी हो सकता है। वजीहा को तो सिर्फ जगाया गया ना कि वो भी बता सकती हैं। यस, हाँ जी, सना, रिदा, वजीहा,
फरहान अहमद मुस्तफ़ा, कौन बताएगा भाई यूनिटी? यहाँ पे कोई मसला है? इस पैराग्राफ को आप खुद पढ़े ना, क्रिटिकली देखें। सर को जी, हाँ सर बताएं। जी, एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ बताएं। सर सर जी, ये ना पाम पायलट्स के बारे में बात हो रही है, इसमें ये फैक्स मशीन और ये फोन का जिक्र बीच में से कहाँ से आ गया? यही तो मतलब पता लगा रहा था कि यूनिटी फाइंड करनी है। यही तो मसला है इसके अंदर ना, यही तो मैं पूछूं, मैं बता रहा हूँ कि मुझे बताएं इसमें मसला क्या है पैराग्राफ के अंदर, कि बात किस पे हो रही है और बीच में क्या हो रहा है, ये बताएं आपको मसला कोई इस इधर मसला है ना कोई? हाँ सर फैक्स हाँ मशीन सर पाया। जी, और फैक्स फैक्स मशीन बीच में से कहाँ से आ गई? मतलब ये तो सर ये नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं 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 ये नहीं है? यूनिटी नहीं आ रही है, ये बहुत गलत हुआ। अच्छा गलत बात है। ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं है सर, ये तो कट करें इसको। देखें दीज आर बेसिकली दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, कि जब आप लोग लिखते हैं ना तो आप बीच में जब होता है क्या, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग तो आप भी इसी तरह सोचते हैं, जो कुछ जहन में आता है लिख के आ जाते हैं, दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़ लिखाते हैं, तो इसी तरह बीच में सारी बातें लिखते हैं। तो इसीलिए कहा लुक हियर, दीज टू आर व्हेन यू आर गोइंग टू चेक द पैराग्राफ। ठीक है, जब आप खुद भी लिखेंगे ना पैराग्राफ, फर्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये दिस इज योर टॉपिक सेंटेंस, दिस इज योर टॉपिक सेंटेंस, क्या इसके साथ सारी बातें मिलती जुलती हैं? आपने खुद बताया फैक्स मशीन और ये सेलुलर फोन्स, इनका इसके साथ क्या ताल्लुक है? दीज टॉपिक्स आर नॉट, these sentences are not related to the topic sentence, so it indicates that this paragraph lacks unity। ये इसके अंदर ये फालतू चीज़ें हैं, यानी कि इसके अंदर ये जो हाथ हाथ वाली बात है ना, बात बीच में एक भेड़ का हाथ भी, भेड़ का पाँव आया हुआ है, एक बकरे का पाँव आया हुआ है, हाथों की बजाय वो चीज़ें भी आई हैं, बाकी सारे हाथ हैं, बीच दरमियान में कोई और चीज़ भी है। तो ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की हुई है। ठीक है, सो यू हैव हाईलाइटेड, दैट्स फाइन। सो now I'm going to tell you some more important things, some tips when you are going to write a paragraph, so you have to start it from pre-writing steps। ठीक है, बड़े तवज्जो के साथ आपने सोचना है कि आप किस पे लिखने जा रहे हैं। अपनी नोटबुक को खोलें, फैक्ट्स को इकट्ठा करें उस पैराग्राफ या ऐसे से रिलेटेड जो हैं, अपने आइडियाज़ को आप एक पॉइंट्स बना के नोट करें। उसके बाद मेन आइडिया अपने अपने पैराग्राफ का के लिए आप ढूंढें कि आपने किस आइडिया पे लिखना है। आइडियाज़ इकट्ठे करेंगे, कागज़ पे नोट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे बिफोर राइटिंग, ये स्टेप्स हैं। पॉइंट्स लिखेंगे, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बात की कि विमेन राइट्स पे बहुत से राइट्स हैं, तो एक राइट पे आपने लिखना है, वो राइट आपने नोट किया, अब उस राइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, फिर उसको एक तरतीब से लिखना है, ऑर्गेनाइज करना है कि किस तरह आप अपने आइडियाज़ को डेवलप करेंगे। जैसे यहाँ पे ये बात हुई, ये इस बंदे ने बीच में दरम्यान में कोई और बात आई वो भी लिख दी, तो उसकी वजह से काम ज़्यादा ख़राब हुआ। सो लिखते हुए फिर क्या करेंगे, कंप्यूटर पे लिख रहे हैं या हाथ पे लिख रहे हैं, खोलें उसको नोटबुक को, टॉपिक सेंटेंस लिखें, सपोर्टिंग सेंटेंस, एंड देन राइट डाउन क्लोजिंग सेंटेंस। सो योर sentences must be clear, must be properly expressing the meaning, so you have to focus on the main idea that you are going to deliver in your paragraph, so you can use a dictionary to find out additional words to express your ideas। नए ideas के लिए आप नए अल्फाज ढूंढें डिक्शनरी से। सो पहली दफ़ा जब आप लिखेंगे ना, when you write your paragraph for the first time, तो उसके बाद आप उसको एडिट करेंगे। आपने लिख लिया, लिखने के बाद then you will check for grammar, for spelling, for style and organization, कि इसके अंदर कोई यूनिटी का मसला तो नहीं है, ग्रामर स्पेलिंग के मसले तो नहीं है, सेंटेंस का कोई इशू तो नहीं है। यानी पूरी तसल्ली करके आपने मेरे पास भेजना। दिस इज़ पब्लिशिंग स्टेप, मीन्स कि जब आप अपना पैराग्राफ टीचर को, ट्यूटर को दे रहे हैं, किसी को चेक करवाने के लिए भिजवा रहे हैं, दैट इज़ पब्लिशिंग। जो उसमें से गलतियां निकालेगा, गलतियां निकालने से पहले आप खुद गलतियां निकाल लें, खुद देख लें कि कहाँ पे जो है ना वो लूप होल्स हैं। ठीक है, सो दीज आर द पब्लिशिंग स्टेप्स। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ, दिस इज़ योर टाइम। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। हाँ जी, किसी बंदे का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें। अच्छा, ख़वातीन बिल्कुल खामोश हैं, या तो ये क्लास में नहीं बैठे, तो अगर क्लास में बैठे हैं तो खामोश क्यों है? नो क्वेश्चन फ्रॉम गर्ल्स साइड, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, या सिर्फ लड़के ही जाग रहे हैं, लड़कियां जो है ना फिलहाल वो नाश्ता बना रही हैं। देखें जी,
सर वो पूछ रहे हैं कि कोट्स और वर्सेस कैसे लिखेंगे, मैसेज पूछ रहे हैं। कहाँ पे लिखें कोट्स एंड वर्सेस? ज़रूरत देखें कोट्स एंड वर्सेस किस तरह लिखें, वो उसको इन्वर्टेड कॉमा, अच्छा अगर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कुरान की आयत का हवाला देंगे तो आप उसका बेशक तर्जुमा लिख लें इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास में कि कुरान पाक में ये लिखा गया है। अगर एग्जैक्ट टेक्स्ट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है, जो भी होगा। लेकिन उसके बाद फिर आप उस पर कमेंट करेंगे आपने ये जो बात लिखी है ये आपके टॉपिक सेंटेंस से किस तरह मुतालिक है। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी औरत को जो है ना वो ये हक दिया गया है, ठीक है, वेमेन हैज़ बीन ब्लेस्ड विद दिस राइट, पर्टिकुलर राइट, किसी की आपने बात की, तो जब आप उस पर बात करेंगे उसके बाद आपने कुरान का हवाला दिया, फिर आप उसके ऊपर कमेंट करेंगे आपकी बात के साथ ये किस तरह रेलेवेंसी है इसकी, ठीक है, कि कुरान में ये बात लिखी और ये बात जो मैंने की है उसके साथ ये इस तरह रेलेवेंट है। आप उसके ऊपर फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश करें। कोट करने के लिए आप इन्वर्टेड कॉमर्स का सहारा लेंगे। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? गुड, शाबाश। अच्छा, यही तरीक़ेकार हमारा होगा। सी आर प्लीज़ इनको बाकियों को मैंने जैसे मैंने बता भी दिया। 43 लोग हमारे पास, 42 लोग ज्वाइन किए हैं आज क्लास के अंदर। आप 42 ही हैं सारे के सारे या ज़्यादा हैं? 50 स्ट्रेंथ है हमारी। 50 है, बस ये 8 बंदे गराजर थे। एनीवेज आई हैव रिकॉर्डेड द लेक्चर एंड योर अटेंडेंस हैज़ आल्सो बीन रिकॉर्डेड। अगर किसी को एतराज़ होगा सी आर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक, इनको भी आइडिया हो जाएगा दैट दे आर बीइंग रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस। आप अपने पास ये अटेंडेंस जो है ना मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। कल इंशाल्लाह हम क्लास लेंगे। वील बी हैविंग प्रैक्टिस ऑन पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, उस पर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर ये जो पैराग्राफ लिखते हैं ये डायरेक्ट पैराग्राफ लिखते हैं या पहले ऊपर आउटलाइन वगैरह नहीं नहीं, बनानी कुछ भी नहीं लिखना, बस डायरेक्टली पैराग्राफ लिखना है। नो नीड टू राइट एन आउटलाइंस। है? ओके सर। ठीक, शायद जी कोई एंड पे एग्जांपल हिस्ट्री से लेके बंदा डाल सकता है। जहाँ से भी एग्जाम्पल आप डालेंगे, एग्जाम्पल मिडिल में डाली जाती है, एंड पे नहीं डाली जाती, ठीक है। एंड पे बात को कंक्लूड किया सर जाता ये क्वेश्चन पे आ गया तो नवाज शरीफ वगैरह हमारे लिख सकते हैं थोड़ा सा। है। क्या हमजा हमजा बोले? जैद जी जी ये इमरान खान पे लिखना है भाई, करप्शन का सारा, नवाज शरीफ पे नहीं लिखना। बोलो ना, एक बंदा बोले। नहीं नहीं, किसी पे भी ना, आप अपनी करप्शन पे लिखें। आप इमरान खान उसको छोड़ें, आप खुद बताएं कि क्लास का टाइम होता है 9 बजे, तो हम 9:20 पे पहुंचे। 20 मिनट की आपने खुद, हम आपसे पहले पहुंचे भी होते हैं। हाँ, ये वाली इस करप्शन का सोचें आप, ठीक है ना। क्लास चल रही होती है और बंक मार रहे होते हैं, आगे पीछे नाश्ते माश्ते खड़का रहे होते हैं, सो वो करप्शन है। वो तो सर हमारा हक बनता है ना। सर अभी भी हमारा खाना ठंडा हो रहा है, इन्होंने दोबारा गर्म भी नहीं करना, लेकिन हम क्लास ले रहे हैं। नहीं, साथ साथ खाते रहना, कौन सा मसला है। देखें वो तो मैंने सिर्फ बोलना है, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक। देखें गर्ल्स को देखें, खा रही हैं, नाश्ता कर रही हैं, सब कुछ बिल्कुल खामोश है, सब ने कसम उठाई हुई है, किसी एक ने नहीं बोलना। सर वो तो शाही फील कर रही है ना। नहीं सर ऐसा नहीं है, सारा सुन रहे हैं। एक बंदा जागा है, देखें, इसका मतलब एक ही जाग रहा है। अच्छा, शाय फील कर रहे हैं। चलिए जल्दी। की लेंथ बता दें कितनी होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट। 7 to 9 sentences, not more than 7 to 9 sentences, ठीक है। ओके हाँ, 7 to 9 सेंटेंस। ये प्रेजेंटेशन गूगल क्लासरूम में पहुंच चुकी है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है जी। सो if we don't have any more questions, so I think we should call it a day, ठीक है। how was your experience? You must share your experience with other people। बाकियों को भी बता दें, अपने जो बाकी जो आपके बहन भाई जो थे, जो हाज़िर हुए आज, कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। इंशाल्लाह कल, हाँ, कल मज़ीद सुकून आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त जी। क्लास है। हाँ इंशाल्लाह मैं अपनी क्लास लूँगा भाई, मैंने अपने पैसे हलाल करने हैं, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी ने लेनी है नहीं लेनी, मैं लूँगा अभी क्लास, बिकॉज वील बी हैविंग सम प्रैक्टिस ऑन पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। सो आपकी यही बहुत पसंद और बस अभी मक्खन थोड़ा लगाएं, ठीक है। अभी इजाज़त दें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सर अब ये सारा दिन सुनेंगे।